Hello, students. Welcome back to our channel Gyan Manju Online Education. I hope you all are fine and safe at your home. So, students, today onwards we are going to start our second part of our this unit, and the name of the unit is the story of cricket. So, the first part we have already completed in our last 1 to 2 lectures. So, in this first part, we talked about the history of the cricket, means from where this cricket had started. क्रिकेट के बारे में हमने बात की कि कब से कितने साल पहले कहाँ से उसकी शुरुआत थी, उसके जो इक्विपमेंट्स थे, उसके यूज़ कैसे होते थे, उसके शेप्स कैसे थे, with the help of which material the bat and the ball were made. Okay, so that we had completed in our last lectures. Okay, so students, let's get started our this second part of our this unit. Okay, the origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing the game was the small community of Zoroastrians, the Parsis. So the origins of Indian cricket. Indian cricket का origin उसकी बात की गई है. The origins of Indian cricket are to be found in Bombay, and the first Indian community to start playing. जो इंडियन कम्युनिटी है उसने स्टार्ट की खेलने की, टू स्टार्ट प्लेइंग द गेम खेलने की शुरुआत की. दैट वाज द स्मॉल कम्युनिटी ऑफ ज़ोरोएस्ट्रियंस द पारसिस. मतलब पारसी लोगों ने, उसकी एक छोटी सी कम्युनिटी थी, उन लोगों ने उसके मेंबर्स बना के एक कम्युनिटी क्रिएट की थी, और वो थी हमारी फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी की जो बॉम्बे में थी. Brought into close contact with the British because of their interest in trade, and the first Indian community to westernize. The Parsis founded the first Indian cricket club, the Oriental Cricket Club, in Bombay in 1848. So here, brought into close contact with the British, वो लोग ब्रिटिशर्स के साथ ज़्यादा क्लोज थे. क्यों? बिकॉज ऑफ दैर इंटरेस्ट इन ट्रेडिंग में पारसिस लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट था. इसके वजह से उसका कांटेक्ट ब्रिटिशर्स से ज़्यादा था, और पहले शुरुआत भी क्रिकेट की ब्रिटिश से शुरू हुई थी, इसीलिए यहाँ से उसका कनेक्शन दिखाया है. बिकॉज ऑफ दैर इंटरेस्ट इन ट्रेड एंड द फर्स्ट इंडियन कम्युनिटी टू वेस्टर्नाइज. The Parsis founded the first Indian cricket club. तो जो पारसी ने इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट का क्लब जो है वो बनाया, द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट क्लब? द ओरिएंटल क्रिकेट क्लब इन बॉम्बे 1848. Parsi clubs were funded and sponsored by Parsi businessmen like the Tatas and the Wadiyas. So here, Parsi clubs were funded and sponsored. तो यहाँ पे फंड और स्पॉन्सर्स हुए देयर बाय पारसी बिजनेसमैन. पारसी ही था बिजनेसमैन. पारसी मतलब कि आई होप यू नो अबाउट दिस पारसीज. पारसी लोग एक कम्युनिटी होती है, उन लोगों की बात की गई है. सो द बिजनेसमैन लाइक द तातास एंड द वाडियास. द वाइट क्रिकेट elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between the Bombay Gymkhana, a whites only club, and Parsi cricketers over the use of a public park. So here quarrel was there between the Bombay Gymkhana, where a
Whites only club and Parsi cricketers, they over the use of public park. The Parsis complained that the park was left unfit for cricket because the polo ponies of the Bombay Gymkhana dug up the surface. So here what happened, let's see. तो पहले तो पारसी ने क्लब किया किसके साथ, फंड और स्पॉन्सरशिप किसके साथ, पारसी बिजनेसमैन जो होते हैं उसके साथ ही। देखो यहाँ पे वो लोग भी पारसी थे, उन लोगों ने स्पॉन्सर भी पारसी ही ढूंढा। लाइक किसकी तरह थे वो, ताता और वाडिया की तरह थे, मतलब कि बहुत बड़े नामी बिजनेसमैन थे। The white cricket elite in India, they offered no help to the enthusiastic Parsis. तो उन लोगों ने क्या किया, they just no help to enthusiastic Parsis, मतलब कि जो स्पॉन्सरशिप उसे मिलती थी, फंड भी उन लोगों को मिलता था, पर द वाइट क्रिकेट एलाइट इन इंडिया, इंडिया में ये जो वाइट क्रिकेट वाली टीम थी, दे ऑफर्ड नो हेल्प टू द enthusiastic Parsis. They were not helping, they were not asking for the help to the Parsis. In fact, there was a quarrel. पर वहाँ पे तो कुछ एक बात को लेकर झगड़ा भी होता था. There was a quarrel between the Bombay Gymkhana, Whites only club, and Parsi cricketers ओवर द यूज़ ऑफ अ पब्लिक पार्क. पब्लिक पार्क को यूज़ करने के लिए ये जो दोनों था कम्युनिटी, अ काइंड ऑफ टीम, दे वर जस्ट क्वेरलिंग. द पार्सिस कंप्लेन, पारसी ने क्या कंप्लेन किया दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनटिल अनफिट फॉर क्रिकेट. जो पार्क है वो अनफिट है क्रिकेट के लिए, फॉर क्रिकेट, बिकॉज द पोलो पॉनिस ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द surface. Well, it became clear that the colonial authorities were prejudiced in favor of their white compatriots. The Parsis built their own gymkhana to play cricket in. The rivalry between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for the pioneers of Indian cricket. तो यहाँ पे बॉम्बे जिमखाना और पारसी, ये दोनों अ काइंड ऑफ डिफरेंट टीम्स वर देयर. तो क्या हुआ, जो पार्क में खेलने के लिए वो दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, बहुत ऐसी हाई बातचीत हो रही थी, ऐसी कि वो झगड़े पे आ गए उस तरीके की. फिर पार्सिस ने कंप्लेन भी की दैट द पार्क वॉज लेफ्ट अनफिट फॉर क्रिकेट बिकॉज द पोलो पॉनिज ऑफ द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सर्फेस. क्योंकि ये जो बॉम्बे जिमखाना वाले हैं वो सर्फेस को डग अप कर ले फॉर दैट. वैन इट बिकेम क्लियर, फिर जब वो क्लियर कर दिया जो कुछ भी उसे परेशान करते थे, मतलब कि जो कुछ भी सरफेस था वो एकदम क्लियर कर दिया, एकदम सा नीट एंड क्लीन था, क्लियर था. सो दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज़ वर प्रेजुडाइज, मतलब कि उन लोगों ने ऐसा क्या किया इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपैट्रियट्स, मतलब कि फेलो कंट्रीमैन, कंपैट्रियट्स मीन्स. तो उन लोगों ने ऐसा सोचा, वो लोगों जो थे वो ये जिमखाना वाला के साइड में थे या फिर ये पार्सिस के साइड में थे, ऐसा कुछ नहीं था, बट दे वर जस्ट प्रेजुडाइज्ड इन फेवर ऑफ देयर वाइट कंपैट्रियट्स. द पार्सिस बिल्ड देयर ऑन, मतलब कि जो बॉम्बे जिमखाना वाला था उसके साइड में वो थे. फिर पार्सिस ने क्या किया, द पार्सिस बिल्ड देयर ऑन जिमखाना, खुद से अपना जिमखाना क्रिएट किया. पार्सिस दे जस्ट बिल्ड अप देयर ऑन जिमखाना टू प्ले क्रिकेट. क्रिकेट खेलने के लिए अलग से खुद का जिमखाना क्रिएट किया. द rival between the Parsis and the Bombay Gymkhana had a happy ending for this pioneers of Indian cricket. तो ये जो pioneer में था इंडियन क्रिकेट में, तो उसके लिए ये जो
जिम खाना था, हाँ, जो जिम खाना था उसके पायोनियर में ये जो कुछ भी हुआ उसके एंड में दैट वाज अ हैप्पी एंडिंग फॉर दैट, मीन्स दैट वाज द रिवलरी बिटवीन, मतलब कि अच्छा सुलझाव से दोनों के बीच में अच्छा सा सब कुछ हो गया, अब कुछ भी क्वारल भी नहीं हो रहा था. द रिवलरी बिटवीन द पार्सर्स एंड द बॉम्बे जिमखाना हैड अ happy ending for the pioneers of Indian cricket. A Parsi team beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889. So between these two teams there was a match, cricket match, and a Parsi team they just beat the Bombay Gymkhana at cricket in 1889. Just 4 years after the foundation of the Indian National Congress in 1885, an organization that was lucky to have amongst its early leaders the great Parsi statesman and intellectual Dadabhai Nauroji. Okay, so let's first see a team, a Parsi team उसने बीट किया किसको, द बॉम्बे जिम खाना को 1889 में जब क्रिकेट मैच था तब. जस्ट 4 years आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था, उसकी स्थापना जब हुई थी उसके 4 years के बाद की ये बात है. एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज लकीली टू हैव अमोंगेस्ट इट्स अर्ली लीडर्स एंड ग्रेट पारसी स्टेट्समैन. कौन था वो? पारसी स्टेट्समैन एंड इंटेलेक्चुअल दादा भाई नौरोजी. तो वो भी वो टीम में थे, ये बात कर रहे हैं. नाउ फर्स्ट लेट्स सी दिस पिक्चर, हाउ इज दिस एंड व्हाट इट शोज. The Parsi team, the first Indian cricket team to tour England in 1886. Know that along with the traditional cricket flannels, they wear Parsi caps. So here we can see the identification of Parsi. They wear a particular cap. So they have wear that Parsi caps. So ये फ़ोटो कब की है? 1886 की है, पारसी टीम की है, जो हमारी फर्स्ट इंडियन क्रिकेट टीम इंग्लैंड में टूर के लिए गई थी, उसकी ये फ़ोटो है. तो पारसीज ने अपनी ट्रेडिशनल कैप जो है वो भी साथ में पहनी हुई है. एंड हु इज़ दैट? पलवानकर बालो, born 1875. At a time when Indians were not allowed to play Test cricket, he was the greatest Indian slow bowler of his time. उसकी टाइम की बात करिए, पलवानकर बालो की बात है कि उसके टाइम में जब हमारी कंट्री को यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने की परमिशन नहीं थी, we were not allowed to play Test cricket, but he was the greatest Indian slow bowler of his time. उसके समय की बात है. He was the greatest Indian slow bowler of his time. Okay. Then modern cricket is dominated by tests and one-day internationals played between national teams. The players who become famous, who live on in the memories of cricket's public, are those who have played for their country. So modern cricket is dominated by tests and one-day international. तो ये if we talk about modern cricket, तो modern cricket में ये जो टेस्ट और वन डे इंटरनेशनल है उसे डोमिनेट किया जाता है. दे प्लेड बिटवीन नेशनल टीम्स. ये टेस्ट और वन डे में नेशनल टीम्स के साथ खेलते हैं लोग. और इफ़ वी टॉक अबाउट द मॉडर्न क्रिकेट तो उसमें ज़्यादा टेस्ट और वन डे ज़्यादा होती है. द प्लेयर्स who became famous,
who live on in the memories of cricket's public are those who have played for their country. So the players who became the world famous, they have played very important role in our cricket. So they got that memories of cricket's public. वो कौन है? आर दोज हु हैव प्लेड फॉर देयर कंट्री. उसकी कंट्री के लिए जो खेले हैं उसे बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है और बहुत वो फेमस भी हुए हैं कि जो अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं. द प्लेयर्स, इंडियन फैंस, रिमेंबर इवन नाउ आर दोज who were fortunate enough to play Test cricket. C.K. Naidu, an outstanding Indian batsman of his time, lives on in the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vittal and Palwankar Balo have been forgotten. Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first stage matches against England starting in 1932. His place in India's cricket history is assured because he was the country's first Test captain. So, the players, Indian fans, remember. तो यहाँ पे इंडियन के फैंस की बात की गई है, जो द प्लेयर्स ऑफ इंडियन. तो जो इंडिया के लिए खेलता है और जो फैंस है वो दोनों की बात की है कि लोग किसे ज़्यादा रिमेंबर करते हैं. द फैंस रिमेंबर इवन नाउ आर दोज हु वेर फॉर्चुनेट इनफ टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, कि जो लोग ने ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेट में खेला है. C.K. नायडू, एन आउटस्टैंडिंग इंडियन बैट्समैन ऑफ हिज टाइम. C.K. नायडू की जो अपने टाइम में बहुत अच्छे इंडियन बैट्समैन रहे हैं, lives on it the popular imagination when some of his great contemporaries, कि जब और किसी की बात करें कि जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा खेला है, जैसे कि पलवानकर विट्ठल एंड पलवानकर बालो, हैव बिन फॉरगॉटन, कि उन लोगों को भूला गया है. तो लोग किसे याद करना चाहते हैं, किसे याद रखते हैं? द फैंस ऑफ क्रिकेट to whom they want to remember. So they must remember the cricketer of play test cricketers, right? Even though Naidu was past his cricketing prime when he played for India in its first test matches against England starting in 1932. तो इंग्लैंड के सामने 1932 में when Naidu was playing, तो यहाँ पे नायडू के बारे में बात की है. इवन दो नायडू वॉज पास्ट हिज क्रिकेटिंग प्राइम वैन ही प्लेड फॉर इंडिया, कि जब उसने इंडिया के लिए खेला फर्स्ट टेस्ट मैच में. किसके सामने थी? फर्स्ट टेस्ट दैट वाज अगेंस्ट इंग्लैंड, कि जब वो 1932 में स्टार्ट की थी, तब नायडू पहली बार खेले थे. हिज प्लेस इन इंडियाज़ क्रिकेट हिस्ट्री इज अश्योर. तो क्रिकेट की हिस्ट्री में, इंडिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में उसका नाम अश्योर है बिकॉज ही वॉज द कंट्रीज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, क्योंकि वो इंडिया की, हमारी कंट्री के फर्स्ट टेस्ट के कैप्टन रहे हैं. इसलिए नायडू का नाम जो है वो अश्योर है, कि लाइक दिस, कि सारे लोग उसे याद करते हैं एज अ फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, एज अ बेस्ट क्रिकेटर. सब लोग उसे याद भी करते हैं क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टेस्ट मैच. तो लोग ज़्यादातर टेस्ट में इंटरेस्टेड ज़्यादा है, वो बात करना चाहते हैं इसके ज़रिए. ओके, देन इंडिया एंटर्ड द वर्ल्ड ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन 1932. 1932 में इंडिया ने वर्ल्ड के टेस्ट की क्रिकेट में एंटर किया. अ डेकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज
Test cricket from its origins in 1877 was organized as a contest between different parts of the British Empire, not sovereign nation. The first test was played between England and Australia when Australia was still a white settler colony. Similarly, the small countries of the Caribbean that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. सो हियर द ओरिजिन्स ऑफ द क्रिकेट, कब से इंडिया ने वर्ल्ड की टेस्ट में एंटर किया? 1932 में, अ डेकेड एंड अ हाफ बिफोर इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. दिस वॉज पॉसिबल, ये पॉसिबल था बिकॉज टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इट्स ओरिजिन इन 1877 वॉज ऑर्गेनाइज्ड एज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर में जब से ये इसकी ओरिजिन स्टार्ट हुई 1877 को, तब से लेके दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ये क्रिकेट का ओरिजिन 1877 से स्टार्ट किया था और उसका ब्रिटिश का एम्पायर जो था पूरा, वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट से डिवाइड था, नॉट सोवरेन नेशन. द फर्स्ट टेस्ट वॉज प्लेड बिटवीन, जो फर्स्ट टेस्ट था वो किसके बीच में था? बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों के बीच था टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच व्हेन ऑस्ट्रेलिया वाज स्टिल अ वाइट सेटलर कॉलोनी. अभी भी वो वाइट सेटलर कॉलोनी है. सिमिलरली वैसे ही द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरिबियन that together make up the West Indies team were British colonies till well after the Second World War. अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद मतलब कि जब वेस्ट इंडीज़ के साथ उसकी मैच थी, उसके बाद कर रहे हैं द स्मॉल कंट्रीज ऑफ द कैरेबियन दैट टुगेदर मेक अप द वेस्ट इंडीज़ टीम, दैट वॉज टीम दैट वेर ब्रिटिश कॉलोनीज. तो उसके साथ उसके सामने उसकी मैच थी टिल वेल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद. सो इट्स ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ ओवर दिस यूनिट, 10th यूनिट. ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस we are going to end up our second part. Okay, still third part will be there. Okay, so students, here we are going to end up our today's lecture with this second part. Okay, so in this whole lecture we talked about the second part. Okay, so in your homework you have to write down this comprehension check, write true or false against each of the following sentence. Okay, ये आपको करना है, प्लस क्या करना है दूसरा, आपको ये जो वोकेबलरी वर्ड्स है 2 या फिर 3 वर्ड्स है वो भी आपको लिखना है. ओके, वो लिखना है. और फिर क्या लिखना है, फिर से जैसे आपने होमवर्क में फर्स्ट पार्ट का होमवर्क जो रहा था, क्या था कि आपको जो ईयर है वो इंडिकेट करना है और उसके सामने वो ईयर में क्या हुआ था वो इंडिकेट करना है. तो वैसे ही आज के होमवर्क में सेकंड पार्ट में जो कुछ भी साल मतलब कि ईयर इंडिकेट हुआ है तो वो आपको लिखना है. फर्स्ट यू हैव टू यूज़ नंबर्स और बुलेट्स. ओके, बुलेट्स एंड नंबर्स का यूज़ करके आपको ये बनाना होगा, प्रिपेयर करना होगा. पहले आपको साल लिखनी है, ईयर लिखना है और उसके सामने आपको इंडिकेट करना है कि वो ईयर में क्या हुआ था. ओके, सो दैट इज़ योर होमवर्क. ओके स्टूडेंट्स, that you have to write down in your rough book. Okay, so here we are going to end up over today's lecture. If you find any difficulties regarding this, you're free to ask me. Thank you my dear all students, and have a nice day.